Okay, so continuing with the next, like previous class, I'm bringing the problems and then I'll be doing one problem what I left from question number 6. So here is the first question. Okay. So question number 6, few questions already we have discussed. We have already discussed, like the quadratic questions we have discussed, right? Today, what I'm going to do out here, two questions, question number C and then question number E. Other problems already we have done. So let us start with question number C. So here we will mark the function as fx equal to minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1. Okay, this is given only. So now you have to find the stationary points in order to define the intervals, right? So you find directly the derivative. So what is f dash x will be equal to 6x square, right? Minus 6x square, then 18x, then 12x, 12. So now this has to be factorized in order to find it 0. So we'll be getting here this is 3x and then plus 2, and then we'll be factorizing this. It is x plus 1 into x plus 2. So this you can do. So here only by the side I am writing the stationary points are, therefore this is something ridiculous coming out. Okay, so we'll be writing therefore stationary points are, what are the stationary points? For here it is x equal to minus 1 and then x equal to minus 2. So these are the two stationary points. So very immediately you draw a line so that you can end up with the intervals you need. So there will be a point here minus 1, minus 2 will be this side. This is minus 1. See, this is a silly mistakes. Many times students do it. वन को इधर रख देते हैं, -1 को। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ही करते हैं, मेरे से भी हुआ है, तो केयरफुल रखना रहना। देयरफॉर इंटरवल्स आर, या फिर वी राइट कंसिडर्ड द इंटरवल्स, राइट, कंसिडर द इंटरवल्स माइनस इंफिनिटी टू -2। अच्छा, जिसमें एफ डे 0 होता है पहले ही उसको आउट कर देते हैं, बिकॉज वी आर टोल्ड टू फाइंड आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, increasing strictly or decreasing strictly. So we at the beginning only जो रेंज है उसमें से और इंटरवल है उसमें से एंड पॉइंट्स को निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें एफ डेस एक्स 0 है। सो नाउ इंटरवल वाइज विल डिस्कस एट इंटरवल माइनस दिस टू दिस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर। तुम देखो यहाँ पे अगर x को रखोगे, x इज लेस देन 2 एंड ऑटोमेटिकली x will be less than 1, -1, right, automatically. So I can easily grab what are the signs of x plus 1 and x plus 2. So accordingly you try to define the sign of f dash x. -6 इधर है, x plus 1 का साइन कितना है, नेगेटिव है, x plus 2 का भी नेगेटिव है। सो तीन नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नेगेटिव आएगा। सो f dash x is a negative quantity, right? f dash x is a negative quantity, ठीक है। इसका मतलब इस वाले इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, इसको कंक्लूजन यहाँ पे दे ही दे दो। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारता हूँ। आई विल नॉट राइट द वर्ड, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे दो एरो नीचे चला गया। एफ डेस एक्स नहीं, सॉरी, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? इन दिस इंटरवल, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू -2 में, ठीक है। एक पार्ट हो गया हमारा। यू गो टू द नेक्स्ट इंटरवल एट
-2 to -1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स देखो, तुम ग्राफ देखने से ज्यादा क्लियरिटी होगा। यहाँ अगर एक्स को रखोगे 2 से बड़ा है और -2 से बड़ा है एंड -1 से छोटा है, तो लिख दो -2 से बड़ा है एंड -1 से छोटा है। So what it is giving you, x plus 2 is greater than 0, and at the same time x plus 1 is less than 0, right? Therefore now you talk about the sign। -6 पहले से ही पड़ा हुआ है, x plus 1 का साइन नेगेटिव है एंड x plus 2 का पॉजिटिव है। दो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। कितना बड़ा वैल्यू आएगा उससे मतलब नहीं है, बट इट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स, यही सिंबल लेके लिखते हैं। इट इज नॉट टू बी यूज इन एग्जाम, राइट? इन कौन सा इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -2 to -1, right? So you got this interval as well। I have a like sign rule which is called wavy card method that we'll do afterwards। पहले general वाला सीख लो because this is more conventional। now इसमें करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तुम फिगर देखो, इसमें -1 से बड़ा होगा, देयरफॉर वेरी ऑब्वियसली -2 से भी बड़ा होगा, राइट? तुम्हें ये दिखाई देता हूँ, अगर कोई चीज यहाँ पे -2 है, -1 है, इधर रखे हो तो 1 से बड़ा होने का ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या है, 2 से भी, -2 से भी बड़ा होगा। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, दिस बोथ द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। सो व्हाट कैन यू से अबाउट साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इट इज -6, x प्लस 1 के लिए पॉजिटिव और x प्लस 2 के लिए भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। तो कंक्लूजन क्या डालोगे, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन सा इंटरवल में, इन -1 टू इंफिनिटी। अब लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कंक्लूजन फाइनली। देयरफॉर एफ एक्स इज strictly increasing, right? In which one? It is in -2 to -1 and is strictly decreasing in -infinity to -2 union -1 to infinity। So you are done with the results. You are done with the results. See, you are done with the results. Good. So this is a good question। I'll come to now question number E, that is x plus 1 whole cube whole into x minus 3 whole cube। That is also to be done, ठीक है। I think I can move on to the next question, ठीक है। So question number E, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया है देख लो, what is given in E। Okay, we will give the name as fx, it is x, again I'll see, I forgot, it is x plus 1 cube and whole cube and x minus 3 whole cube। ओके चलो, 3 को यहाँ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वी हैव टू टॉक अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ इच इन इंटरवल्स। सो बढ़िया है, एज पर द प्रीवियस आइडिया, जस्ट डू द डिफरेंशिएशन फॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स। तो वी कैन यूज द डिफरेंशिएशंस प्रोसेस ऑफ चेन रूल, राइट? ये और मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। आई एम वेरी श्योर दैट यू कैन डू इट। सो यहाँ से जो जो कॉमन आता है, यू टेक दिस आउट, इट इज टेकन आउट, इट इज टेकन आउट, इट इज हियर एंड देन x -3, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर एंड 3 कैन बी टेकन कॉमन। नाउ लिटिल सिंप्लीफिकेशन शुड बी डन। इफ आई डू द सिंप्लीफिकेशन, इट इज ट्वाइस x -2, very fine। Then acha, from here you can take it 2 common and make it 6, so that you can visualize all the factors। So 2 into 2 is 6, 6 into 2 is 24, 24 into 6 is 24, 24 into 6 is 36, 36 into 2 is 36, 36 into 2 is 24, 24 into 6 is 24, 24 into 6 is 24, 24 into 6 is 36, 36 into 2 is 24, 24 into 6 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 is 24, 24 into 6
राइट, तो इट इज x माइनस वन। ठीक है, x माइनस वन। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? जीरोस, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू वन। इसमें एक कहानी देखो, इसमें एक तुमको चीज देखना है। वन थिंग यू शुड सी, very important part. We can in fact discuss all the intervals separately. कितना इंटरवल मिलेगा देख लो यहाँ पे। एक तो माइनस वन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा माइनस वन को लेना नहीं है वैसे, ब्लैंक जीरो रखने से दैट इज मोर लॉजिकल। ये वन ले लिया और ये थ्री ले लिया, तो यू हैव गॉट वन इंटरवल, टू इंटरवल, थ्री इंटरवल एंड फोर इंटरवल्स। सो यू कैन डिस्कस ऑल दीज फोर इंटरवल्स सेपरेटली। बट ध्यान से सुनो, एक बात बोलने जा रहा हूं मैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू रिड्यूस योर वर्क। ये वाला देखो, x माइनस थ्री होल स्क्वायर, इसके ऊपर डिग्री टू है। इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है ये कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, चाहे x का वैल्यू तुम थ्री का कम से लो या ज्यादा से लो, राइट। ठीक उसी तरह से x प्लस वन होल स्क्वायर इट हैज अ डिग्री टू, which again will not contribute in the sign, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, राइट। सो जो पोटेंशियल साइन कंट्रीब्यूशन होगा वो किसके कारण होगा मालूम है? दैट इज ओनली ड्यू टू x प्लस वन, क्योंकि इसी का पावर ऑन है। तो कंसंट्रेट सिर्फ इसके ऊपर करो। सो ओवरऑल दो इंटरवल पकड़ो, एक इस साइड में एक इस साइड में। क्या मैं क्लियर हूं सबके लिए? Yes, sir. एंड देन वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर एट द सेम टाइम कि यहाँ पे माइनस वन वाला पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि इट विल मेक एफ डैश एक्स जीरो। और थ्री लेना नहीं है इस साइड में। बस तुम्हारा दिमाग में ये होना चाहिए, दैट इज द ओनली पार्ट यू शुड हैव इन योर माइंड। सो अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे कंसीडर द इंटरवल्स। डायरेक्ट लिखेंगे कंसीडर्ड द इंटरवल्स, राइट। क्या क्या इंटरवल होगा? एक माइनस इंफिनिटी से लेके वन तक चलेंगे हम लोग, वन तक। लेकिन इस वाले में माइनस वन को छोड़ देना पड़ेगा, राइट। माइनस वन को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है यहाँ पे। एंड द अदर वन इज योर इंटरवल, ओपन इंटरवल फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, जिसमें हम लोग छोड़ देंगे थ्री को, राइट। कोई अगर चाहेगा तो इंडिविजुअली ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, सॉरी, this intervals can be also discussed. Ultimately result same ही आएगा। So it is better to make it short because we have provisions, right? तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पहला वाला इंटरवल इन माइनस इंफिनिटी टू वन, जहां से हमने माइनस वन को छोड़ दिया। अच्छा, इस इंटरवल में क्या नोटिस करोगे तुम? अगर x को यहाँ रखोगे, इफ विल कीप x देयर, तुम जस्ट यहाँ पे ये दोनों का तो साइन के बारे में बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। देयरफॉर जीरो होने का भी चांस नहीं है। जीरो होने का चांस क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी माइनस वन और थ्री को किक आउट कर चुके हैं। तो सिंपली वन का रेफरेंस में बात बोलो यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, एक्स लेस देन वन। एंड हाँ, एक बात बोल के रखना है, जीरो नहीं होने के कारण ये इक्वल नहीं है। तो व्हाट आई गेट, दिस इज नेगेटिव। देयरफॉर व्हाट कैन यू से अबाउट द साइन ऑफ एफ डैश एक्स? सिक्स, ठीक है। इसमें लिख दोगे पॉजिटिव, कौन सा वाला में? एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तुम बैठे देखो, इसमें लिख दोगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता है, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू वन। एंड देन यहाँ पे एक ही साइन है नेगेटिव। सो ओवरऑल में क्या रिजल्ट आया? नेगेटिव। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। सो एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव होता है, व्हाट शुड बी योर गुड कंक्लूजन? योर कंक्लूजन शुड बी fx should be strictly decreasing. Where in this interval minus वन, माइनस इंफिनिटी टू वन, जहां से हमने माइनस वन को छोड़ दिया।
ठीक है, ये हो गया एक. आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट. द नेक्स्ट इज 1 to infinity, जहां से हमने 3 को छोड़ दिया इस बार. तो इसमें भी तुम फिगर देखो, इसमें 1 से बड़ा होगा एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट इक्वल टू 3. देयरफॉर जब तुमने एफ डेस एक्स का साइन का बात किया, यहाँ पे 6, राइट, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और ये वाला भी पॉजिटिव. एक लाइन लिखना भूल गया यहाँ पे, x माइनस 1 इज पॉजिटिव. तो ओवरऑल में सारे की सारे वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एफ डेस एक्स जो है इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0, राइट. प्लीज सी दिस, देख लो एक बार इसको, ठीक है, देख लिया. सो बहुत बढ़िया से कंक्लूजन डाल दो पहले जैसा. देयरफॉर एफ एक्स क्या होगा पॉजिटिव होने से, इट विल बी strictly increasing in the interval 1 to infinity this. So last में you write the conclusion. conclusion के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट में लिख देना therefore जो है conclusion is left for you. मतलब दोनों एक साथ लिख देना conclusion, because that is the demand of the question, nothing else. So I have just left it. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. देख लो वहां पे अगर कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को क्वेश्चंस पूछना है तो most welcome for asking the questions. I'm coming to question number 7. I think you will be able to do this question. That one. I'm not talking about question number 7. The previous question, I think you have understood it. And then now question number 7 is a very good question. It's an important question. So they are saying you have to show that it is an increasing function. Increasing function बोले तो डेरिवेटिव जो है ना ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं, इट कैन बी जीरो एज वेल. तो बस तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि आई कैन शो इट टू बी जीरो एज वेल, राइट. सो मुझे यहाँ से पहले से ही अपना काम शुरू कर देना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव हियर, सॉल्यूशन. अच्छा, डेरिवेटिव को इस बार y1 ले लेते हैं हम तो, dy dx, क्योंकि fx की जगह y दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. So be careful while doing the derivative. You should not miss out any kind of terms. अच्छा, यहाँ पे x greater than or equal to -1 देके रखा है. This is a domain, or whatever it is, we have to discuss the increasing nature of the function at that point only. मतलब तुम अगर लाइन से देखोगे यहाँ पे अपने आप को इंटरवल नहीं बनाना है. एक पॉइंट है, इस वाले का राइट साइड में हमको देखना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव का नेचर क्या है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन निकालो. क्या बोला था, डब्बा रूल, 1/x होगा ये, एंड देन u by v का नाम सुने ही हो. सो अप्लाई u by v होल, दिस डेरिवेटिव अप्लाई u by v. सो ये 2 होगा. आई थिंक आई नीड नॉट एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दिस, तो तुम लोग जानते ही हो. सो एक साथ हम लोग इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं. वी विल फाइंड द एलसीएम आल्सो. कर लिया, निकाल लिया, ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा, ये 2 + x होल स्क्वायर, एंड देन इसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. विल सिंप्लीफाई दैट, देन इट विल बी बेटर फॉर अस. तो सिंप्लीफिकेशंस के लिए यहाँ पे देखो, 2 × 2 4 है, ठीक है, रहेगा. 2 × x ट्वाइस x प्लस ट्वाइस x, ये माइनस ट्वाइस x, ये दोनों कट जाएगा. सो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट इज योर -4, and then it will be multiplied to this particular part. So you got this, ठीक है. So now you simplify it completely. नीचे वाला फैक्टर्स को तोड़ना मत, right. Do not break this, ठीक है. लेकिन न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो एंड देन ट्राई टू फैक्टराइज दिस. इसको डायरेक्टली करेंगे हम लोग, राइट, डायरेक्टली करेंगे. मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, बस यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि इफ आई एक्सपांड इट, इट विल बी a + b होल स्क्वायर में एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा. तो ये आने से क्या होगा, ये 4 और यहाँ का 4 × 1 से कट जाएगा,
ये प्लस 4x और यहाँ पे माइनस 4x कट जाएगा. What you will be left with is only your x square. So please see this. Your complete thing is now this quantity. ठीक है. अब हमें अपना इन पर्टिकुलर चीज का साइन के बारे में बोलना है. देखो कैसे बोलेंगे. हियर x is greater than -1. X is greater than -1. So obviously x will not be equal to -2. ठीक है. Am I clear to you? ठीक है. Therefore Yes, यहाँ पे sir. दो तीन चीज को निकालो अभी. x+1 जो है ये पॉजिटिव होगा, मतलब इसके बारे में मुझे बोल गया, साइन मिल गया. x is not equal to -2 will imply x+2 whole square is always positive, क्योंकि स्क्वायर है ये कभी नेगेटिव करेगा नहीं. नंबर वन, ये नेगेटिव 2 नहीं होने के कारण जीरो भी नहीं होगा. तो दो चीज का हमको पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल गया. लेकिन ऊपर बोला है इंक्रीजिंग, मतलब ये जीरो भी हो सकता है. ओके. ऑल्सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. क्यों भाई? तुम्हें नंबर लाइन फिर देखना है. देखो, यू आर टोल्ड टू कंसीडर -1. -1 का इस साइड का सारे के सारे नंबर तुम लोगे, स्क्वायर करने से पॉजिटिव होगा, ये तो ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं जीरो भी तो इसमें है. तो एट द टाइम व्हेन यू कंसीडर x टू बी जीरो, तो क्या मजरा होगा? वैल्यू ऑफ x स्क्वायर विल बी जीरो. दैट मींस इट विल बी नॉन नेगेटिव. तो अभी यहां से बहुत बढ़िया से तुम साइन का कंक्लूजन डालो. ऊपर में क्या लिखोगे? पॉजिटिव नहीं लिखोगे, ऊपर में लिखना पड़ेगा नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ने लायक बना देते हैं. इट इज नॉट लुकिंग लाइक रीडेबल. ठीक है. ये कितना होगा? नॉन नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और नीचे दोनों जो क्वांटिटी है पॉजिटिव. तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? नॉन नेगेटिव विल इंक्लूड टू थिंग्स, आइदर कंप्लीटली पॉजिटिव और जीरो. तो अगर ये ऊपर वाला जीरो हो गया तो रिजल्ट जीरो होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव होगा. तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. राइट? दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. दैट मींस f dash x is greater than or equal to जीरो. तो मैं यहाँ भी वही स्टाइल में कंक्लूजन लिखूंगा. देयरफॉर, अच्छा f dash लिख दिया मैंने, सॉरी. We were not given f dash, actually we were given y. So make more corrections over here. It should be y1, y1, and here also it is y1 is y1 तो लिख ही दिया. तो अल्टीमेटली इसको लिखोगे y. सो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो कैसे लिखोगे? y में जस्ट स्टाइल मार के दे दिया, फॉर x ग्रेटर देन -1. राइट? प्लीज सी इट. प्लीज सी. एग्जाम में ये मत लिखना है. एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो नंबर कोई काट देगा तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बाद में ये मत बोलना सर आपके कारण नंबर कट गया. ओके, आई एम ब्रिंगिंग नाउ द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस. इनमें से एक करूंगा, दूसरा वाला नहीं करूंगा. दूसरा वाला होमवर्क होगा तुम लोगों के लिए. ओके, सी इट हियर. ये वाला मैं नहीं करूंगा क्योंकि देखो ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है. मैं ये तुम्हारे सामने ला इसलिए रहा हूं क्योंकि देखने से तुमको लगेगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर ब्रैकेट है. नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट है. ठीक है. ओके, आई एम गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ 40 मिनट्स, द 10 मिनट्स रिमेनिंग. सो 10 मिनट बाद लाइन कट जाएगा एंड देन वी विल फिनिश विद द क्लास. सो एनीवे, नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू फिनिश विद द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ये जो है, दिस हैज बीन सेट मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम. बहुत बार आ चुका है. कितना बार आ चुका है कोई हिसाब नहीं है. एंड इसी का ही दूसरा रूप मिसलेनियस में भी है. सो नाउ डायरेक्टली 9 का आंसर करेंगे. y लिखेंगे. क्या दिखाने दिया है? इंक्रीजिंग. इस बार इंटरवल कौन सा है? तुम अगर ध्यान से देखोगे, 0 से लेके π/2
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मगर 0 और 90 डिग्री नहीं आता है, रिमेंबर इट, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो बस ध्यान में रखो, क्योंकि इस बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बात चल रहा है, सो यू हैव टू टॉक अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये तो हो गया कहानी। अच्छा, यहाँ पे तुम चाहो तो रेफरेंस के लिए ये बोल भी सकते हो दैट यू हैव टू टेक थीटा फ्रॉम दिस प्लेस। y1 निकालो, ठीक है, इस बार डायरेक्टली कर ही देते हैं u बाई वी। तो u बाई वी करने से दिस विल बी स्क्वायर, दिस इज cos थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 cos थीटा होगा, फिर माइनस, इस बार v को डिफरेंशिएट करना है, 2 को करेंगे तो 0 होगा, cos को करेंगे तो माइनस sin थीटा होगा। फिर यहाँ पे एक थीटा छुपा हुआ है, वो -1 होगा। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, यू नो, नॉर्मली ये जो 1 होता है ये हम लोग स्किप कर जाते हैं और रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, सो केयरफुल रहना इसको करने में। तो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी देखो कुछ कुछ कटेगा शायद, कटने से तो ठीक ही है, नहीं कटने से हम लोग इसको एक्सपांड कर लेते, नहीं कटेगा, ये बस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 इंटू 4 ये बनेगा 8 cos थीटा, यहाँ पे 4 cos थीटा sin थीटा, एंड नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, ये तो बस 4 cos स्क्वायर थीटा हुआ, एंड देन दिस विल बी 4 sin स्क्वायर थीटा, बट दिस विल बिकम 4, दैट इज अ गुड एडवांटेज। एंड यहाँ पे होगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, 1 के कारण वो कभी छूट जाता है, अगेन आई एम टेलिंग यू। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया। सो यहाँ पे देखो 8 cos थीटा, एक साथ करने का कोशिश करो, 8 cos थीटा, यहाँ से कोई cos थीटा आएगा क्या, यहाँ पे एक्सपांड करने से देखो क्या आएगा, इफ आई एक्सपांड इट इट विल बी व्हाट 4, दिमाग से देख लो बस, प्लस 4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, सो माइनस 4 cos थीटा यहाँ से आएगा, और ये है 8 cos थीटा, तो माइनस 4 cos थीटा अगर चला जाएगा तो यू विल बी लेफ्ट आउट विथ 4 cos थीटा, हो गया cos थीटा का चक्कर। इसके बाद 4 cos स्क्वायर थीटा एंड 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लोगे तो 4 होल इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, राइट। मैं इसको यहाँ पे ही लिख देता हूँ, तो ओवरऑल इसका वैल्यू 4 होगा, ये +4 ये -4 होगा, कट जाएगा, इसका कोई नहीं रहेगा, and then at last what will be left out here, it will be minus cos square theta will be left out, ठीक है, minus cos square theta। so it is what the simplified form is, डिनोमिनेटर को टच मत करो। तो यहाँ पे अपना और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए cos को कॉमन ले लो, 4 माइनस cos थीटा करना है, एंड देन वंस यू कम अप टू दिस, अब तुम्हें क्या बोलना है, you have to talk about the sign of this y1, ठीक है। सो यहाँ पे बात करो, वी हैव थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 इंक्लूडिंग पाई बाई 2 एंड 0, राइट, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके सबका साइन के बारे में बात करो। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 डिग्री लिया है ना, 90 डिग्री में cos थीटा 0 भी हो सकता है, ठीक है, ले लिया, इस वाले का काम तमाम हो गया। अच्छा, इस वाले का क्या बोलोगे, इस वाले का तो हम लोगों को डायरेक्ट ही बोल देना है, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा ही, क्यों, एज cos थीटा लाइज, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कहाँ लाई करता है, थोड़ा सा अच्छा ढंग से लिखे, रुक जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से लेके 1 के बीच में, राइट, एज 0 लेस देन 1, तो मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का 1 ही है, तो 1 अगर 4 से माइनस करोगे तो 3 फिर भी बचेगा, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका हो गया। अब इसके बारे में बोलते हैं, ये भी वही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना है cos थीटा का, 0 है,
तो ये माइनस तो होगा नहीं, 2 प्लस cos थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर करने से क्या होगा, ऑल्सो पॉजिटिव, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, ये डायरेक्टली लिखो इसको, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पॉजिटिव, राइट। अब देयरफॉर y डैश के साइन के बारे में बोलो। ऊपर जो cos थीटा है, अगर जीरो आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, नॉन निगेटिव लिखते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, बस ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव। एक बार लिखने से कंक्लूजन पहले उससे सोचो, ये पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉन नेगेटिव लेते हैं, दो ऑप्शन आएगा, जीरो लेने से पूरा जीरो होगा, नॉन नेगेटिव का दूसरा ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लेने से पूरा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। देयरफॉर एक बार ऐसे अच्छा दिखा दो, अच्छा हो गया। इसका मतलब देयरफॉर y जो फंक्शन है ये क्या होगा, इंक्रीजिंग, h0 to y by 2. Please try to conclude this, not write like this. As I told you earlier also, मैं बार बार बोल रहा हूँ, for your thing you have to write this. अभी मेरे पास 2-3 मिनट है, इस 2-3 मिनट में छोटा छोटा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आई वाज ट्राइंग टू फिनिश दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज टुडे, बट एक दो क्वेश्चन रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग डील। सो टुमारो विल बी एबल टू स्टार्ट विद टेंजेंट नॉर्मल। पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं, 2 मिनट टाइम है मेरे पास। अच्छा, बाय दिस टाइम इज देयर एनीवन टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है बोलो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो बढ़िया है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर दिस 10। इसमें करने लायक मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, किसको, लोगरिथमिक फंक्शन को। ये एक लाइन का प्रॉब्लम है, मैं डिटेल लिखूंगा भी नहीं, इस टाइप का है। तो तुम्हारा फंक्शन है y लोगरिथमिक x, एक्चुअली यू शुड कंसीडर ln ऑफ x, चलो कोई बात नहीं। तो y1 कितना होगा, 1/x। अच्छा 1/x, तो यहाँ देखो 1/x में एक ही लफड़ा होता है। क्या लफड़ा होता है, अगर जीरो आ जाएगा तो गड़बड़ है, पहले से ही देखो जीरो नहीं है। और इसमें क्या है, 1/x इज द रेसिप्रोकल, अगर x डालोगे तो पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव निकलेगा। यहाँ तो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव ही है, सो ये क्लियरली होता ही है। कहाँ पे, इन जीरो टू इंफिनिटी। बस हो गया तुम्हारा कहानी, इसको और मुझे करना नहीं है, तुम लोग अपना लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे करना दिए है कि दिस फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। मैंने क्या बोला था, इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, उसमें मेरे पास लेस देन 1 मिनट टाइम है, कभी भी काट सकता है, ठीक है। इसको नहीं करेंगे, नहीं तो आधा में खत्म होगा। सो टुमारो विल डू दिस, तो यू ट्राई टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वॉट एवर यू कैन। सो टुडे आई विल फिनिश इट, थैंक यू। Thank you, sir. If you have any questions, you can ask. I'm ready to take it. ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय फॉर टुडे, सी यू टुमारो। Thank you, sir. ओके। Thank Thank you, you, sir. sir.